स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 5 गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन का चैप्टर नंबर 6 सैम एंड द सीक्रेट कॉल को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पेज मैं इस चैप्टर का आपको दिखा दूँ जो क्लास 5 से है, सैम एंड द सीक्रेट कॉल। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, वो पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, यहाँ पे आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी हियर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड आर्मांडो डू when he and Sam reached the middle of the sea? What did Sam see and how did it make him feel? So when Sam and Armando reached the middle of the sea, Armando dropped the anchor. He then put his hands together to blow a sort of whistle. At this, much to Sam's surprise, he saw a small school of dolphins near the horizon swimming towards them. Question 2. When Armando fainted, Sam realized that he was alone on the boat in the middle of the storm. How do you think he felt? What do his actions after that they tell action after that tell you about him? So, so he probably felt nervous and helpless as he had no idea what to do next and how to get out of the situation alone. But soon Sam decided to use the whistle that Armando had taught him and call the dolphins to help him. यहाँ पर डॉल्फिन्स के बाद टू जो है वो सेपरेट है भाई, टू हेल्प देम। दिस टेल्स us that even the midst of a crisis, Sam did not lose his calm and bravely tried to come up with a solution. Question number 3, what did Sam do while the dolphins were pushing the boat and why? So he tried to make Armando comfortable while the dolphin pushed the boat. He wanted Armando to gain consciousness as soon as possible so that he could instruct Sam what to do next. Question 4. At the end of the story, Armando was talking to Sam, but Sam wasn't listening. Why? What was he thinking? Sam was not listening where Armando was talking because he was lost his own thoughts. He was thinking about the most adventurous day of his life, of how he had managed to solve himself and Armando, and the way in which he had been able to keep his calm in the middle of a crisis. He was also enchanted at the sight of the dolphins flying like birds through the golden water. अब ये बी पार्ट जो है वो देखिए, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये लाइन जो है वो बुक की है और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कि लाइंग ऑन अ स्मॉल डेक with the chucking of the boat of his arms and gentle sea breeze fanning his face, Sam almost fell asleep. Why did Sam feel sleepy? तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, Sam had got on the boat soon after lunch. Also the breeze was so pleasant and gentle that it lulled him into sleep. Question 2. It was the most amazing game Sam had ever played. Describe the game that Sam played. So, playing with the dolphins was the most amazing game Sam had ever played. When Sam dove into the water, a few dolphins leaped through the air, then dived just below the surface while Sam swam alongside. The other dolphins swam close by as if trying to catch them. Sam kept playing this way for a long time till Armando called him back to the boat. Question 3. Sam was so relieved that he wanted to cry. Why did he feel relieved? So he was relieved because he knew that the boat was safe in the storm, and that the dolphin would take care of it. Question 4.
Thank you, my friend. I fixed the engine. Well, now you can rest. Who says this and to whom? Why does the speaker ask them to rest? Armando says to Armando said this to dolphins. He wants them to rest because the dolphins were pushing the boat for a long time in a rough waters, and he felt they would be tired. आप देखिए यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर सी जो है बच्चों, रीड दीज सेंटेंसेस, राइट व्हाट द कैरेक्टर फील एंड दैट टाइम। ठीक है, तो लाइंग पहला जो है वो लाइंग ऑन स्मॉल डेस्क विद चेकिंग, ये लाइन पढ़िए। तो ये कैरेक्टर कैसा फील करता है, आंसर दिया हुआ रिलैक्स। ठीक है, आप यहाँ पे दूसरा लाइन पढ़िए, ऑन द हॉरिजन सैम सॉ स्मॉल स्कूल ऑफ अबाउट 12 डॉल्फिन सेटिंग स्टेट ऑन द बोर्ड। तीसरा है डॉल्फिन लीव्ड थ्रू द एयर। चौथा है सैम फाइनली ब्लू। पांचवा है वेयर कैन आई गेट। छठा है एंड दैट ही, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। पहला रिलैक्स आपने देखा, और जो सेकंड आंसर है आप में भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ा आपको, वो यहाँ पे कैरेक्टर क्या फील करता है, वो सरप्राइज़ फील करता है। थर्ड में जो कैरेक्टर है वहाँ पे उसका एक्साइटमेंट हम देख सकते हैं, तो एक्साइटेड आंसर होगा। चौथा जो है वो ट्रायम्फ और सेंस ऑफ अचीवमेंट, और पांचवा जो है हेल्पलेस, क्ल्यूलेस और फ्राइटेंड। छठा जो है वो रिलीव्ड। ठीक है, सेवन्थ डिसबिलीफ और सरप्राइज। एप्रिशिएटिंग क्वेश्चन देख लीजिए, पहला क्वेश्चन एप्रिशिएटिंग का, उसका जो आंसर है वो क्या है, सैम्स एक्सपीरियंस वॉज अनयूजल। इसमें चीज़ों को कंप्लीट करना आपको। तो अनयूजल क्यों थी, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर हेल्प्ड बाई डॉल्फिन। दूसरा जो बी पार्ट है, बी का क्वेश्चन देखिए, हीज एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्शन right from the beginning when Armando whistled for the dolphins. Sam played when them, and then right up to when the dolphins appeared again to save the boat, Sam and Armando. ठीक है, तीसरा जो है Sam situation could be dangerous because they could have been staying in the storm or their boat could have been blown away by the storm. अब डी देखिए, there is also suspense in the story. We do not know how it will end because Sam had just learned how to whistle. He had not tried up his new learning edge, and the dolphins were only familiar with Armando's whistle. We do not know if the dolphins will come out when Sam expected them to. Even if they did, we don't know how they will help. क्वेश्चन नंबर 2 का देखेंगे, आर्मांडो अलाउड सैम टू एंजॉय हिमसेल्फ बट ऑल्सो टू केयर ऑफ हिम। डू यू एग्री, अंडरलाइन द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, आप कैसे एग्री हैं, आपको सेंटेंस से वो चीज़ें पिकअप करके यहाँ पे देनी है आंसर में। तो पहले तो आप यस करेंगे, आर्मांडो टू गुड टेक केयर ऑफ सैम। उसके एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल अलग अलग भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी आप उस बुक से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो लिखा है कि आर्मांडो थ्री लाइफ जैकेट पुट दिस ऑन ही सेट, कि ये एक एग्जांपल हो गया। आई हैव प्रॉमिस्ड योर मदर दैट यू विल वियर इट, ये हो गया। सैम यू मस्ट कम अब्रॉड नाउ, यू मस्ट गो बैक। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बुक की सेम टू सेम लाइन है, आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्रामर और यूसेज के क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे। तो क्या यूज द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड एज शोन, मेक द फाइनाइट वर्ब्स एंड देन नॉन फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट को नॉन फाइनाइट और फाइनाइट को नॉन फाइनाइट करना है। यहाँ पे कुक दिया है, ठीक है, कुक दिया और ABC 3 सेंटेंसेस हैं, फिर यहाँ पे लीव दिया है 1 2 3 सेंटेंसेस हैं। तो आप ये देख लीजिए, यास में डैश लीव करना है, और लीव के लिए यहाँ पे आपको जो है ना, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी, आई एम कुकिंग। तो यहाँ पे ये कुकिंग क्या है, ये कुकिंग नॉन फाइनाइट है। ठीक है, ही नोज़ दैट ही हाउ टू कुक। अब यहाँ पे कुक क्या है, ये भी नॉन फाइनाइट है। शी कुक्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो पहला जो दूसरे का ए है टू लीव, ये नॉन फाइनाइट है। बी लेफ्ट है फाइनाइट, और सी जो है वो लिविंग है, लिविंग जो है वो नॉन फाइनाइट है। तीसरे का ए एन्जॉयज फाइनाइट है, एन्जॉइंग नॉन फाइनाइट, टू एन्जॉय नॉन फाइनाइट। चौथे का विनिंग नॉन फाइनाइट, टू विन नॉन फाइनाइट, और वन
फाइनाइट वर्ब। पाँचवें का रीडिंग, नॉन फाइनाइट और टू रीड ऑल्सो नॉन फाइनाइट। इसका जो पी पार्ट है वो आप इसका आंसर खुद ही करिए। वर्ड्स इन यूज़ में आ जाते हैं। वर्ड्स इन यूज़ के जो क्वेश्चन है वो आप एक बार यहाँ पे बुक में देख लीजिए। सुरेंद्र लेट, ठीक है, रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स, कंप्लीट दिस सेंटेंस इन द करेक्ट वर्ड। कंप्लीट करना है आपको, तो चलिए देखते हैं। अब पहला है ग्रोन, क्रश, जग, रोर, विसल, फूट। इसका जो बी पार्ट है उसके आंसर देखिए। आई विल ड्रैग द हैवी सूटकेस डाउन द स्टेयर्स, द रेलवे लाइन्स क्राइसिस क्रॉस फ्रॉम वन साइड of the country to the other. The swimmer managed to swim across the choppy sea. The forest officer heaved the injured elephant into the veterinary ambulance. डिक्शनरी वर्क में पहला सॉफ्टली, दूसरा द स्टेट ऑफ सडनली बीइंग एक्टिव और तीसरा गोइंग डाउन। राइटिंग स्किल के लिए आपकी बुक में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, उससे आपको एक स्टोरी लिखनी है, कुछ राइट करना है। तो द घोस्ट ऑफ तारापुर आप उसको पढ़ेंगे, एक स्टोरी होगी। मैं आपको दिखा भी दूँ बच्चों, ये देखिए, ठीक है, ये जो पूरा आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस लिखना है। इन योर नोटबुक राइट अ स्टोरी, तो एक स्टोरी लिखना है, एक सिंपल सी स्टोरी मैंने यहाँ पे दे रखी है। आप चाहिए तो आप अपना भी स्टोरी बना सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये राइटिंग स्किल था, इसके ऊपर जस्ट हमने अभी एक्सरसाइजेस को फिनिश किया, देन क्वेश्चन तो फिनिश किया। और आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपके असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में, क्वेश्चन आंसर को डील करने में बच्चों। तो ये चैप्टर 6 था, हमने क्लास 5 के चैप्टर 1 to 7 अब तक अपलोड कर दिए हैं, बाकी के चैप्टर्स को बाद में अपलोड किया जाएगा। और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई होगी आपको तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, वीडियो भी शेयर करिए, ज़्यादा कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम थैंक यू सो मच।